Good evening, students. So now it's time to discuss the solutions of our daily practice sheet. So I have given you some questions regarding the percentage topic that we have discussed earlier in our today's session. So our first question is in the practice sheet is our first question in our practice sheet is find the given percentage of the following. So first part is 20% of 300. The first part is 20% of 300. We have to find the 20% of 300. So in place of percentage, when we remove the percentage, we will put a divide by 100, and in place of we put multiply symbol, multiplied by 300. So on multiplying 20 with the 300, we will get 6000 divided by 100. So the answer will be 60. So the answer will be 60. So 20% of 300 is 60. Similarly, in second part, we have to find 300% of 50. So 300% of 50. So what we will do? First we will remove the percentage sign. So 300 divided by 100 multiplied by 50. So on multiplying, we will get 15,000 divided by 100. So the answer will be 150. So the answer will be 150. So in second part, the answer will be 150. Now the third part is 1% of 20. In third part, we have to find 1% of 20. So 1% means 1 divided by 100. Of की जगह क्या लगाएंगे बेटा? Multiply by 20. So it will be equals to 20 divided by 100. 20 divided by 100. So the answer will be 0.20. 0.20 will be the answer. So now the fourth part of the question number first is 75% of 100. 75% of 100. So 75 परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में 100, ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय। तो 75% ऑफ 100, 100 to 100 कट हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 100 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज 75. So the answer of the fourth part is 75. Hope you are all understanding. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को वापस से रिपीट करिए के समझिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई, then also there will be any doubt, then ask me in tomorrow session. So now the fifth part is 6% of 400. So 6 divided by 100 multiplied by 400 will be equal to 2400 divided by 100. 6 multiplied by 24. 6 multiplied by 24, it is 2400 divided by 100. The answer will be 24. So 6% of 400 will be 24. Now sixth part of the question number first, it is 50% of 150. 50% of 150. So 50% of 150 will be equal to 50 divided by 100 multiplied by 150. So on multiplying, we will get 7500 divided by 100. So the answer will be 75. So the answer will be 75. So let's move to part number 7th of question number first. So part number 7 of question number 1 is 80% of 40. 80% of 40. We have to find 80% of 40. So the 80% of 40 will be equal to 80 divided by 100 multiplied by 40. So the answer will be 3200 divided by 100. 3200 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 32.
तो 80%, अगर 40 का हम 80% निकालेंगे तो कितना आएगा 30। नाउ एट्थ पार्ट, so the eighth part is 5% of 30. So 5% of 30 will be equal to 5 divided by 100 multiplied by 30, that is equal to 150 divided by 100. So the answer will be 1 point. So the answer will be 1.5. So the answer will be 1.5. So this is what we call that how to find the percentage of a given number. If the number is given and we have to find a particular specific percentage, so what we will do, we will just remove the percentage sign and put a divide sign, divide by 100, and in place of we will put multiply. So we will multiply the numerators and then divided it by denominator. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया हुआ होगा। चलिए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, होल क्वांटिटी। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग इफ, अगर हमें किसी चीज का परसेंटेज निकाल कर उसका पार्ट दिया हुआ है तो हमें उस पार्ट का यूज करते हुए होल क्वांटिटी निकालनी है। हमने हमारे फर्स्ट सेशन में, जो कि 7 जून को हमने फर्स्ट सेशन लगाया था, उसमें हमने सीखा था कि परसेंटेज होता है पार्ट डिवाइडेड बाय होल। पार्ट डिवाइडेड बाय होल इज इनटू 100 इज परसेंटेज, बट and in this question number first we have find the part, we have given the percentage, हमें परसेंटेज दी हुई है, हमने पार्ट निकाला। बट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब होल क्वांटिटी निकालेंगे जब हमें परसेंटेज दी हो और उसका पार्ट दिया हो। हमें कहा हो अगर 10%, अगर हम किसी का 10% निकालें तो 100 आएगा, तो बताइए उसकी होल क्वांटिटी कितनी होगी। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर second we have to find the whole quantity. So the first part is 8% of x is 40 liters, so what we will do, we just follow the same step. We will remove percentage and in place of percentage we will put a divide by 100, and in place of we put x, multiply and x, तो x है यहाँ पे तो x ही आ गया, 8 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स है। इसकी जगह हम लगाएंगे इक्वल, इज मीन्स व्हेन 8% ऑफ x इज फाउंड इट विल बी इक्वल टू 40 लीटर। सो ये इक्वल होगा 40 लीटर के। तो 8 डिवाइड बाई 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो किसके इक्वल आ जाएगा, 40 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तो नाउ इन द डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा है जब हम उसको राइट हैंड साइड, देयर आर टू साइड ना, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर वन इज राइट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हम सिंबल्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में। प्लस चेंज होता है माइनस में और माइनस चेंज होता है प्लस में। तो हेयर डिवाइड बाय 100 इज गिवन, सो डिवाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। So x will be equal to, 8 multiply by x is equal to 40 multiply by 100. So now here it is 8 multiplied, so उधर जाके 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसपोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग द डिजिट्स। जब हम मल्टीप्लाई की डिजिट को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो इट इज 4000 डिवाइडेड बाय 8। सो द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर विल बी 500। सो आंसर विल बी 500, द होल क्वांटिटी इज 500। सो द होल क्वांटिटी इज 500 liters। सो होल क्वांटिटी इज 500 लीटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा है। तो हम देखिएगा, आप सेकंड पार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करेंगे, उतना हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो हम देखिएगा, आप सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 5% ऑफ y। 5% ऑफ y इज 600। 5% ऑफ y इज 600। नाउ वी हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी y। तो वही सेम स्टेप, y डिवाइड बाई, परसेंटेज हटाओगे क्या लगेगा बेटा, डिवाइड में 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑफ हटाएंगे तो क्या लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई y, इसकी जगह इक्वल टू 600।
अब ये डिवाइड में 100 क्या है, डिवाइड में 100 क्या है, डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों को सब आता है बेटा, y 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो y विल बी इक्वल टू 60,000 divided by 5, 60,000 divided by 5, so it will be equal to 12,000, so it will be equal to 12,000, the whole quantity is 12,000, so the whole quantity is 12,000. Let's move to our next part, question number second, third part. So now question number second, third part is 12% of Z is 1080. अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे। तो देखिएगा 12 डिवाइडेड बाय परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय Z इज इक्वल टू 1080, तो Z विल बी इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जो 12 मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके आ जाएगा डिवाइड, वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमें क्या करना है 1080 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12। तो जब हम 1,08,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,000, तो द होल क्वांटिटी इज 9,000, so z इज इक्वल टू 9,000, so इट इज द, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 70% ऑफ t, if 70% of t is 14 minutes, is 14 minutes, अगर 70% टी का क्या है 14 मिनट्स है, तो हमें बताना है कि टोटल क्वांटिटी, टोटल टाइम कितना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टी, ऑफ की जगह क्या लगता है बेटा टी, परसेंटेज आके डिवाइड में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय टी, एंड इज की जगह इक्वल, वेरी गुड, इज इक्वल टू 14, तो 100 उधर जाके, वेरी गुड, मल्टीप्लाई, एक्सीलेंट, तो 70 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टी आ जाएगा बेटा हमारा 1400 डिवाइडेड बाय 70, सो द टी विल बी इक्वल टू 20, so t will be equal to 20, so the whole quantity is 20 minutes, so whole quantity will be equal to 20 minutes. So now fifth part, सर अब हमें समझ आ गया है, अब हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो करिए बेटा जल्दी जल्दी। तो 40% बी फास्ट, 40% ऑफ एस इज 500 किलोमीटर। सर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लग सकता है, हाँ जी बेटा, वेरिएबल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक अननोन वैल्यू है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, उसे हम बोलते हैं अननोन वैल्यू। अब इस अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट हो, बड़ा कैपिटल अल्फाबेट हो, आपकी चॉइस, अल्फाबेट से शो करेंगे। सर कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, यस, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम कोई भी वो अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज वी विल यूज ए, वेदर वी विल यूज बी, वेदर वी विल यूज जेड, वेदर वी विल यूज ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को वेरिएबल क्या दिया है, एस, तो 40% ऑफ एस इज 500 किलोमीटर, तो 40% ऑफ एस इज 500 किलोमीटर, सो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एस इज इक्वल टू 500, so s will be equal to, sorry, 40 multiply by s is equal to 500 multiply by 100, so s will be equal to 50,000 divided by 40, 50,000 divided by 40, तो ये हमारा आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय, तो जब हम 50,000 को 40 से डिवाइड करेंगे, जब हम 50,000 को
40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250. So the total quantity will be 1250 kilometers. S will be equal to 1250 kilometers. So now let's move to our next part number 6, क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आप लोगों को सभी को समझ आ रहा है. अगर फिर भी आपको क्वायरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, ठीक है. कल की क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ को करने का, सीखने का एक ही तरीका है कि हम मैथ को सॉल्व करें. तो नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. सिक्स्थ पार्ट इज सॉरी 20% ऑफ M. 20% ऑफ M इज 4000 रुपीज. सर अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर देंगे, तो करिए सॉल्व बेटा. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई, M इज हटाएंगे, 0 इक्वल टू 4000. एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट. ऐसे ही साथ साथ बोलिए. वेरी गुड. तो M 100 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, है ना सर. यहाँ पे डिवाइड है सर, डिवाइड है, हम उधर लेके जाएंगे, वो कहेगा मैं तो चेंज होऊंगा. डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. वेरी गुड. तो 20 मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना सर. ये देखो सर, अब इधर देखो सर, 20 मल्टीप्लाई में है तो उधर लेके जाएंगे, तो सर 20 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड. वेरी गुड, डिवाइड बाय 20. तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, द आंसर विल बी सर, टोटल क्वांटिटी विल बी 20,000. So the sir total quantity will be 20,000. So sir, if the total quantity is 20,000, the 20% of 20,000 is 4,000. अगर हमें 20,000 का 20% निकालना है तो सर कितना आंसर आएगा, 4,000 आएगा. सर चेक करके बताइए, चेक करके बताइए, चेक करके बताइए. 20% ऑफ 20,000, ये मैंने आपको सिखाया है. यस सर, सिखाया है आपने. 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000. तो सर देखिए ये हो गया है 4,000. तो हमारा यही आ रहा है ना. ये तो वेरिफिकेशन के लिए किया बेटा, ये हमने हर बार नहीं करना है. तो हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हमारे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो. तो नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट. लुक एट 7th पार्ट. तो 7th पार्ट इज 10% ऑफ 100. Sorry, 10% of N is 100. 10% of N is 100. So 10 divided by 100 multiplied by N is equal to 100. So N will be equal to 100 multiplied by 100. सर ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में सर डिवाइड में. सो द टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 1000. तो सर टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारी 1000. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट. ओके, now the last part but not the least. So 8th part है हमारा 50% of P is 2000. सर परसेंटेज हटा दो, डिवाइड में हैंडल लगा दो, ऑफ हटा दो सर, मल्टीप्लाई लगा दो, P इज हटा के इक्वल टू 20. सर जो डिवाइड में वो उधर जाके दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई. और सो सर मल्टीप्लाई में वो उधर जाके क्या हो जाएगा सर, डिवाइड. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, यू आर डूइंग फैबुलसली. सो सर आंसर विल बी 4,000. सो द आंसर विल बी 4,000. सो टोटल क्वांटिटी विल बी 4,000. सो दिस इज अवर practice sheet number 1st. We will do daily practice sheets regarding our session. So now if you have any doubt left, you can call me or message me, or we will discuss in tomorrow session. So hope आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा मुझसे पढ़कर, और मज़ा आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा. तो आपको एक मैंने और होमवर्क दिया है, द फॉर्मूला वॉल. अभी तक कुछ बच्चों ने मुझे सेंड की है, तो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक मुझे काफ़ी सारी फॉर्मूला बॉल्स मिलेगी, जिसको मैं अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाऊंगा. तो थैंक यू सो मच. हम मिलते हैं कल के सेशन में. हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.